السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار ہو گیا۔ اپوزیشن کے 80 اراکین نے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں۔ مسودے میں لکھا گیا کہ عمران خان ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی تیار کر لی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے 178 ووٹ لے رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف مشن تحریک عدم اعتماد، اپوزیشن کا اتحاد کیا ہو پائے گا کامیاب؟ نمبرز گیم پورے ہونے کے دعوے کے بعد تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار۔ تحریک عدم اعتماد پر 80 سے زائد اراکین کے دستخط موجود ہیں۔ مجوزہ مسودے میں لکھا گیا ہے وزیر اعظم اس ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ملک اقتصادی زبوحالی کا شکار ہے۔ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کا کوئی روڈ میپ نہیں۔ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی تیار کر لی ہے، جسے جلد اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کرا دیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے چیمبر کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارٹی رہنماؤں کو مشاورت کے لیے چائے پر بلایا ہے۔ اپوزیشن اراکین کو جلد از جلد اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے 178 ووٹ لے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اکثریت کس کے پاس؟ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اسے قاف لیگ، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 17 اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اتحادی اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ قومی اسمبلی میں نمبر گیم اہمیت حاصل کر گیا۔ موجودہ اعداد شمار کے مطابق حکومت اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 177 اور اپوزیشن اراکین کی تعداد 162 ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ سچ مان لیا جائے تو اسے قاف لیگ، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 17 اراکین کا ساتھ مل گیا۔ اس لحاظ سے اپوزیشن کو 179 اراکین کی حمایت ملے گی۔ جماعت اسلامی کا ایک ووٹ کس طرف جائے گا تاحال واضح نہیں ہو سکا۔ حکومتی اراکین کی تعداد 178 سے کم ہو کر 161 رہ جائے گی۔ ان میں پی ٹی آئی اراکین کی تعداد 155 ہے۔ تحریک انصاف کے رکن خیال زمان کی وفات کے باعث حکومتی ارکان کی ایک نشست کم ہو چکی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 10 کا ہندسہ اہمیت اختیار کر گیا۔ اپوزیشن کو اپنے نمبر ہی نہیں سنبھالنے بلکہ مخالف کیمپ میں موجود 10 اراکین کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے قاف لیگ مفت میں ووٹ نہیں دے گی، انہیں بہتر پیشکش کرنا ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو، کہتے ہیں عدم اعتماد کا مقصد خود کو وزیر اعظم بنانا نہیں، وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ اگلا سیٹ اپ محدود مدت کے لیے ہوگا، اس کا مینڈیٹ انتخابی اصلاحات اور شفاف انتخابات کرانا ہوگا۔ پی ایم ایل کیو اپوزیشن کا وزیر اعظم کا امیدوار کو ووٹ دے، وہ مفت میں تو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس وقت خان صاحب نے ان کو پنجاب کا اسپیکر بنا دیا ہے۔ میرا خیال میں ہمیں ان کو ایک بہتر آفر دینا چاہیے۔ اس وقت عدم اعتماد لانے کا مقصد اپنے آپ کو یا کسی اور کو وزیر اعظم بنانے کے بعد نہیں ہے۔ کسی جماعت کا یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبا انٹرم حکومت لے آئے۔ ہم ایک شارٹ ٹرم کے لیے ایک لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ایک انٹرم حکومت لے آنا چاہتے ہیں، جس کا مینڈیٹ ہو کہ الیکٹورل ریفارمز کروا کے صاف و شفاف الیکشنز کروائے۔ میرے جیالوں کے لیے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پل ٹو سوالو کہ ہم وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف صاحب کے لیے ووٹ دیں، مگر ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ملک کے مفاد کے لیے۔ تحریک عدم اعتماد ہی مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اصل ریلیف ثابت ہوگی۔ مسلم نون کے صدر شہباز شریف کی حکومت پر تنقید، کہا کہ حکومت ساری دولت والوں کے لیے جنت بن چکی ہے۔ گھی مہنگا ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمت میں کمی امن واپس ہو چکی اور ایل پی جی مہنگی ہونے کے بعد نام نہاد ریلیف ہوا۔ 3 سال کے دوران گندم، آٹا، چینی اور بجلی 100% مہنگی ہوئی۔ گردشی قرضوں میں 114% اضافہ ہوا۔ جھوٹے حکومتی پیکیجز کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ تحریک عدم اعتماد ہی عوام کے لیے اصل ریلیف ثابت ہوگی۔
अदम एतमाद की खिचड़ी पकने लगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाल आ जाए तो फिर आपको बताएंगे। कहा कि इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं, उनसे तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। अगले 48 घंटों से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी मेडी हंडी चढ़ी ये निकलेगा तो। और जो 48 घंटे मौलाना फजल रहमान ने कहा है वो तो फजल मान साहब। चौधरी साहब अब आपका ये पैगाम है जो मोहन साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। नहीं, वो घबराए तो नहीं हुए, घबराए नहीं बिल्कुल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मिट्टी में घनघरज, जलसे से खिताब में बोले बिलावल जरदारी घबराया हुआ है, पीटीआई के झंडे उतारे जा रहे हैं। सरकारी वसाइल पर पीपल्स पार्टी का मार्च लड़खड़ा रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल रही है, पीटीआई सेहत कार्ड लाई है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी गौसिया जमात के लोगों से कहा कि जो पीपल्स पार्टी से घबरा रहा है वो उसे पीपल्स पार्टी में जाने की इजाजत देते हैं। अगर कोई अपनी कीमत लगवाना चाहता है तो कोई एतराज नहीं, दो कश्तियों में सवार मत हों, विकेट के दोनों तरफ खेलना छोड़ दें, न सियासत है न शराफत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मिट्टी में घनघरज, जलसे से खिताब में बोले बिलावल जरदारी घबराया हुआ है, पीटीआई के झंडे उतारे जा रहे हैं। सरकारी वसाइल पर पीपल्स पार्टी का मार्च लड़खड़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मामले खुसूसी यार मोहम्मद रिंद ने कहा है कि हुकूमत के लिए इस वक्त सब अच्छा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को साबित करना चाहिए वो नहीं घबराए। बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अवाम नहीं कुछ कुव्वतें फैसला करती हैं। 3.5 अरब रुपए में बलूचिस्तान हुकूमत बेची गई। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। बहुत से लोग हमसे राब्ते में हैं, पहले भी थे और हमने बदकिस्मती से सबको छोड़कर इमरान खान का साथ दिया। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में। क्या इस्लामाबाद में सब अच्छा है? मेरे ख्याल में घबराना नहीं चाहिए, पर अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा हमेशा हुक्मरान के लिए नहीं होता है, अपोजिशन के लिए तो क्या अच्छा या क्या बुरा, प्रूफ करना चाहिए कि वो घबराते नहीं है। मगर जो चीजें हो रही हैं वो घबराने वाली है। तो बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान की आवाम नहीं करती, बलूचिस्तान की असम्बली नहीं करती, बहुत सारी कुव्वतें हैं जो इस्लामाबाद में बैठी हैं वो फैसले करती हैं। 3.5 अरब रुपए में गवर्नमेंट बेची गई है। अगर बात फैसले तक ही पहुंची, वोट तक, तो मुझे बहुत भयानक मंजर नजर आ रहा है हुकूमत का। ये अप्रोच तो पहले दिन से लोग करते थे। जब पीटीआई में गए थे तो सब पार्टियों ने अप्रोच की थी, मगर बदकिस्मती हमने सब कुछ को छोड़ के खान साहब के लिए इसलिए आए कि मैं समझा कि उनका भी ताल्लुक छोटे सूबे से है। वजीर आजम इमरान खान से उज़्बेक सदर ने मुलाकात की, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को अफगानिस्तान के जरिए जोड़ने का फैसला किया है, चाहते हैं अफगानिस्तान के मुंजमद किए गए पैसे बहाल किए जाएं। उज़्बेक सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। वजीर आजम से उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की इस्लामाबाद में मुलाकात, अफगानिस्तान खित्ते की सूरत हाल, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात समेत पर तबादला ख्याल किया गया। Muhit Yusuf xavfsizlik sohasida 2022 yilga mo'ljallangan kompleks dasturni imzolaydilar। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को अफगानिस्तान के जरिए जोड़ने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सियाहत बढ़ेगी। तो हमने ये फैसला किया है, आपने और मैंने, कि इन ताल्लुकात को फिर जोड़े हम, और ये सिर्फ तिजारत ही ना हो बल्कि ये हमारे जो कल्चरल ताल्लुकात थे, हमारी तारीख थी, उस सब को हम सामने रखते हुए अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाएं। हम अपनी कनेक्टिविटी उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान के जरिए आपस में जो कनेक्ट करने का हमारा प्लान है, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगी, इससे हमारी तिजारत भी बढ़ेगी।
वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं अफगानिस्तान का मुंजमद किया गया पैसा बहाल किया जाए, इसके लिए काम करेंगे। मसला कश्मीर पर उज़्बेक सदर के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं, दुनिया मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान के सदर के इस्लामाबाद पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गुज़िश्ता माह बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान को $3 अरब से ज़ायद खसारा हुआ। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक फरवरी में $5 अरब 90 करोड़ की दरामदात के मुकाबले में सिर्फ $2 अरब 80 करोड़ की बरामदात की गई। रूस यूक्रेन के दरमियान कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान में मौशी बहाली के बाद दरामदात बढ़ गयी। गुज़िश्ता माह तिजारती खसारा $3 अरब 9 करोड़ रहा। इदारे शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक रवा माली साल 8 माह के दौरान बरामदी मालियात तकरीबन 26% इजाफे से $20 अरब 54 करोड़ रही। दरामदी हुजम 55% बढ़कर $52 अरब 50 करोड़ रहा। इस तरह 8 माह में $31 अरब 95 करोड़ का तिजारती खसारा हुआ। भारत के मजमूम अज़ाइम एक बार फिर नाकाम बना दिए गए, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक बहरिया ने जदीद तरीन भारतीय अबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। जासूसी के लिए आने वाली भारतीय अबदोज का रास्ता रोककर भागने पर मजबूर कर दिया। मक्का और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय बहरिया ने जासूसी के लिए अपनी आबदोज भेजी। मुसलसल चौकस पाक बहरिया ने पेशावराना महारत से ये कोशिश नाकाम बना दी। पाकिस्तानी नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट ने 1 मार्च को भारत की जदीद तरीन ग्लोरी क्लास आबदोज को कबल अज वक्त रोका और ट्रैक किया। ISPR के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और पाक बहरिया की जारी मशक सी स्पार्क 2022 के दौरान ये अहम वाक़या है। भारतीय आबदोज पाकिस्तान के मैरीटाइम जोन में जासूसी और मशक से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी करने आई थी। पाक बहरिया मशकों के दौरान सख्त निगरानी और चौकन्ना रहने के तरीक़ेकार का इत्तलाक किया गया था। गुज़िश्ता 5 साल में ये चौथी भारतीय आबदोज पकड़ी गई है। DGISPR ने कहा कि ये पाक बहरिया की सलाहियत और पाकिस्तान की समंदरी सरहदों के दिफा के अज़म का अक्स है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस कुलभूषण 6 साल से पाकिस्तान के कैद में है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर कुलभूषण के एतराफी बयान ने दुनिया के सामने भारत का स्याह चेहरा आश्कार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 3 मार्च 2017 शिद्दत पसंदी और रियासती दहशतगर्दी करने वाले भारत का चेहरा अयां हुआ। हाजिर सर्विस रॉ अफसर कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सरजमीन से गिरफ्तार किया गया। भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करने पाकिस्तान भेजा गया था। कुलभूषण ने अपने एतराफी बयान में खुलकर भारतीय घिनौनी मंसूबे को आश्कार किया है। RAW is involved in some activities related to the Baloch Liberation Movement within Pakistan. भारत ने अपनी खिफत मिटाने के लिए 8 मई 2017 को आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर किया, लेकिन वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने कुलभूषण को कौंसलर रसाई ही नहीं दी, बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अहले खाना से मुलाकात भी करवाई। भारत आज तक दुनिया को ये नहीं बता सका एक हाजिर सर्विस नेवल अफसर पाकिस्तान क्यों भेजा, क्यों और किसने कुलभूषण को हुसैन मुबारक के नाम से पासपोर्ट जारी किया। कुलभूषण जाधव के एतराफ को सबूत के साथ क्यों नहीं झुटलाया। कुलभूषण को अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील क्यों नहीं फराहम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील फराहम करने का एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क किए कि फेयर ट्रायल हर शख्स का बुनियादी इंसानी हक है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में पाकिस्तान की अदालत पर एतमाद का इजहार किया गया। नजरसानी का मामला पाकिस्तान पर ही छोड़ा। भारत फैसला ठीक से समझ नहीं पाया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि भारत कुलभूषण को वकील की फराहमी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। भारत अदालत इसलिए नहीं आ रहा कि उसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। और अब आपको बताएं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई को 1 हफ्ता गुजर गया। रूसी फौज ने मुख्तलिफ शहरों पर हमले बढ़ा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 752 अफराद हलाक हो चुके हैं। बेलारूस में दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने तवक्को जाहिर की है कि मुज़ाकरात के नतीजे में अमन बहाल हो जाएगा।
यूक्रेनी शहरों पर रूसी फौज के हमलों में तेजी आ गई। खैरसोन के बाद दीगर जनूबी शहरों पर कब्जे के लिए दबाव बढ़ा दिया। मजीद जनूबी शहरों पर रूसी कब्जे की सूरत में यूक्रेनी अफवाज के लिए समंदरी रास्ता बंद हो सकता है। रूसी फौज ने सरहदी साहिली शहर मारियोपोल पर भी शेलिंग बढ़ा दी। खार्किव में रूसी फौज पहुंच गई है, जबकि दारुल हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 752 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन से नकल मकानी जारी है और 10 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिलीफ ऑपरेशन के लिए $2 अरब इमदादी रकम का मुतालबा कर दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के खिलाफ मुमकिन जंगी जराइम की तहकीकात का आगाज कर दिया है। रूसी महकमा दिफा ने पहली मरतबा अपने 498 फौजियों की हलाकत और तकरीबन 1600 के जख्मी होने का एतराफ किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में फरीकैन का अपने अपने अहदाफ पर जोर। यूक्रेन की मुज़ाकरात के जरिए हमले की जद में आने वाले शहरों से आबादी के इनखला की राह हमवार करने की कोशिश, जबकि रूस की कोशिश है कि यूक्रेन फौजी सरगर्मियां खत्म करे, क्रीमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम करे, दोनेत्स्क और लुहानस्क को आजाद रियासतें तस्लीम करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने रूस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। यूक्रेन से रूसी अफवाज फौरी वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। रूस पर मजीद आलमी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे जारी हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने यूक्रेनी सदर को मजीद ताउन की पेशकश कर दी है। The result of the vote is as follows. आलमी बिरादरी रूस के खिलाफ मुत्तहिद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 141 वोटों से रूस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। यूक्रेन से रूसी फौजें फौरी वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत समेत 35 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने मास्को में कीव तनाज़े के हल के लिए अहम नुकात बताते हुए तशवीश का इजहार कर दिया। Pakistan remains deeply concerned at the recent turn of events. All efforts must be made to avoid further escalation of violence and loss of life, as well as military, political, and economic tensions, which can pose an unprecedented threat to international peace and security and global economic stability. आलमी बैंक ने रूस और बेलारूस में अपने तमाम प्रोग्राम्स रोक दिए। आलमी बैंक ने 2014 में क्रीमिया के रूस में इंजमाम के बाद इसके लिए किसी नए कर्जे या सरमायाकारी की मंजूरी नहीं दी। यूरोपीय यूनियन ने भी 7 रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से निकालने का ऐलान कर दिया। कनाडा ने रूस के तवानाई के शोबे से वाबस्ता 10 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। Que des quantités très limitées ces dernières années, cette mesure envoie un message puissant. जापान की टोयोटा कंपनी ने रूस के प्लांट में ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। कहा कंपनी रूस में गाड़ियों की तरसील भी रोक देगी। मर्सिडीज बेंज ने भी रूस को गाड़ियों की बरामदात और मुकामी पैदावार मुअत्तल कर दी। Mercedes запустил еще и крупнейший дилерский центр в Москве. Настолько в компании уверены в потенциале российского автомобильного рынка. रूस के जारहाना इक़दामात के खिलाफ रूसी भी उठ खड़े हुए। सेंट पीटर्सबर्ग में एहतजाज किया गया। यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए स्पेन, अमेरिका और जर्मनी के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। और अभी आपको बताएं कि दुबई एक्सपो अपने अख्तामी महीने में दाखिल हो चुका है और उसमें मौजूद पाकिस्तान पवेलियन पहले दिन से आलमी तवज्जो का मरकज है। इसका दौरा करने वालों की तादाद तकरीबन 10 लाख हो चुकी है, जबकि ये पहले 5 बेहतरीन पवेलियंस में शुमार किया जा रहा है। मजीद इस रिपोर्ट में जानेंगे। दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन की धूम। 150 से ज्यादा ममालिक को पीछे छोड़ दिया। 192 ममालिक में से पहले 5 मकबूल तरीन पवेलियंस में शामिल। मुझे यहाँ हमारे काम पर फख्र महसूस हो रहा है। यहाँ 192 ममालिक शरीक हैं और हम पहले 5 बेहतरीन शुरा में शामिल हैं। दुबई एक्सपो के पहले रोज ही पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करने वाले अफराद की तादाद 8000 थी और अब ये तादाद 10 लाख हो चुकी है। पाकिस्तान पवेलियन का बैरूनी हिस्सा हर गुजरने वाले के कदम रोक लेता है। I think everything. इस पवेलियन की हर बात हैरत अंगेज है। यहाँ पाकिस्तान के हसीन नज़ारों की बेहतरीन अक्कासी की गई है। The beauty of Pakistan.
दुबई एक्सपो में साजो आवाज के दीवानों के लिए बहुत कुछ मौजूद है। पाकिस्तान पवेलियन पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मजबूत दोस्ती का मजहर है। हम यहाँ शिरकत के जरिए ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान वो नहीं जो आप टीवी पर देखते हैं। असल पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप पाकिस्तान आए, इसे देखें और यहाँ सरमायाकारी करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत अहम पाकिस्तानी शख्सियात भी पवेलियन का दौरा कर चुकी हैं। पाकिस्तान पवेलियन की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले एक्सपो के 31 मार्च को खत्म होने तक पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करने वालों की तादाद 10 लाख से कहीं ज्यादा होने का इम्कान है। अमीन खास खेली, आज न्यूज।